میں ضلع سرگودا سے بلونگ کرتا ہوں. محمد علی بھائی کرتے کیا، فیلڈ کون سی آپ کی؟ جی میں LLB کا طالب علم ہوں، فرسٹ ایئر ہے میرا لاء کا. سرفراز بھائی آپ کہاں سے آئے؟ ملتان شریف سے. میرا نام طیب الرحمان ہے اور ویسے یہاں کراچی میں ہی رہتا ہوں، پیچھے ایبٹ آباد. ایبٹ آباد سے. احد رضا احد رضا کہاں سے آئے؟ لاہور سے. آفر محمد یوسف. میں DG خان سے آیا ہوں. میرا نام محمد شبیر، اسلام آباد سے آیا ہوں. بیسکلی میں KPK کا رہنے والا ہوں. ایران شورا کا جو بیان ہے ماشاءاللہ وہ بیان تو بلے بلے کر دیا. میں نے اپنی بہو سے بھی معافی مانگی، اپنے بیٹے سے بھی معافی مانگی، اپنی بیوی سے بھی معافی مانگی اور اپنے ملازمین سے بھی معافی مانگی. یہ میرا ذہن بنا، ورنہ میں اکڑ خوں قسم کے انسان تھا، ورنہ میرے اندر سوری والی کوئی چکر تھا نہیں، میں اکڑ جاتا تھا. لیکن یہاں عاجزی پتہ چلا، پیر و مرشد کی عاجزی دیکھ کے، ہر بندے کی عاجزی دیکھ کے کہ عاجزی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. نگران شورا نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی آج کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کا اچھا استعمال کیا جائے تو اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں اور دوسروں کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں. ہر بندہ کوئی نہ کوئی منہ سے ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے جو نامناسب ہوتے ہیں. دوستوں میں جب بیٹھتے ہیں، اسکولز کالجز میں، پتہ نہیں چلتا کہ ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہیں اس بات کو ادا کرنے سے بندہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. وہ ہمیں یہاں کے معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے جس سے ایمان کا خطرہ ہو. میں نے پہلی دفعہ اعتکاف کیا، میرا دل کر رہا تھا آنے کو. ماشاءاللہ میں نے سارا اپنا گھر والوں، بھائیوں کو، بہن کو، میں ساروں کو خوش کر کے پھر میں ادھر آیا ہوں. پیچھے سے کہنا وغیرہ مجھے ہمیں کچھ دے کے نہیں گیا. میں کہا ماں کی دعائیں لے کے پھر ساتھ آیا ہوں. ماں میری ابھی بھی دعائیں کر رہی ہے، یا اللہ آپ کو عالم دین بنائے. تو آپ اعتکاف میں؟ جی ہم اعتکاف میں آئے ہیں اور 12 ماہ کے لیے آئے ہیں. اعتکاف میں بھی اور 12 ماہ میں بھی، ماشاءاللہ. پہلے تو کام کار تھے، پھر چھٹی ہو گئی، گھر گئے تو کچھ دن کا ارادہ بنا تھا فیضان مدینہ DG خان جائیں گے. وہاں جب دیکھا تو 12 ماہ کے لیے آ رہے تھے نا، تو آج سے ہماری 3 سال پہلے نیت ہوئی تھی، لیکن پھر جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو دل کی تمنا ہوئی، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم نے اسی سال ہی جانا ہے. پھر ایک ہی رات میں ہماری تیاری ہو گئی، ہم ادھر پہنچ گئے. والد صاحب بھی تھوڑا دن سے وابستہ ہے تو ان کو میں نے ادھر آ کے بتایا ہے. انہوں نے کہا آپ جائیں، ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ 2-3 ماہ کے بعد آپ کہیں کہ میری چھٹی لے میں واپس آ رہا ہوں. میں نے کہا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، آپ کو خوش کریں گے انشاءاللہ، آپ ہمیں دیکھ کے خوش ہوں گے اور سال کے بعد ہی آئیں گے. ہم نے یہ بھی نیت کی ہے. باقی میں نے 54 ایئر ایسے گزار دیے، اندھیرے میں گزار دیے. روشنی اب ملنے لگی ہے کہ باقی یہ ہے سارا کچھ. میں الحمدللہ میں بہت بڑا نہیں، لیکن اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے. میری 3 شاپس ہیں. اس دفعہ میں نے کہا میں زندگی میں ایک دن بھی اعتکاف نہیں بیٹھا، تو میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس دفعہ حاضری دوں، وہاں جا کے میں مہینے کا اعتکاف کروں. الحمدللہ میں رابطہ بھی کاروبار میں نہیں کر رہا، میں موبائل بھی نہیں لایا، نارمل گھر والوں کا موبائل لے کے آیا ہوں تاکہ میرے ساتھ کلائنٹ بھی رابطہ نہ کر سکے. میں نے جب گھر بات کی کہ میں اعتکاف پر جانا چاہتا ہوں تو والد صاحب نے خصوصاً میرے ساتھ تعاون کیا، تو پھر انہوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا، انہوں نے اہتمام بھی کیا میرا. اعتکاف کا معاملہ میں نے یہاں پر دیکھا ہے بالکل باہر سے مختلف ہے. وہ اس طرح کہ ایک تو تربیت کے حوالے سے، دوسرا ادبی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، اور جو باقاعدہ یہاں پر نظم و ضبط ایک معتکف کو دیا جاتا ہے، یہ بڑا ایک تعجب والا انداز ہے. اور دوسرا یہ کہ ہر حوالے سے ہی تربیت کی جاتی ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو. اب الحمدللہ ماشاء اللہ تربیت اس طرح کیا کہ کل کئی بزرگ جو ان سے تھے انہوں نے گھروں میں رابطہ کیا امیر اہل سنت کی ایک آواز کی وجہ سے. تو یہ بہت اچھا لگا مجھے. میں اسپورٹس کے شعبے سے ہوں، ڈرل انسٹرکٹر ہوں ایک ادارے میں. یہ تو میں فرسٹ ٹائم ہی آیا ہوں، اس سے پہلے ماحول سے وابستگی نہیں تھی میری. 2010-12 سے لے کر کے اب تک دنیا داری میں ہی تھا. تو پھر اب الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، شکر الحمدللہ حالات اچھے ہو گئے. تو پھر اب ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی یاد کرنا ہے. تو اس کے لیے میں پورے یعنی کہ پاکستان میں ماحول ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے ایسا ایک ماحول مل جائے دن رات یعنی کہ ایک عبادت ہو. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے نا، جو آخری 10 دنوں میں تو اعتکاف کر لیتا ہے بندہ، لیکن یہ پورا مہینہ میرا جو ہے نا ایک بہترین طریقے سے گزرے. تو اس کے لیے پھر ہمارے پڑوسی تھے بلال بھائی، تو وہ یہیں پہ خدمت میں ڈیوٹی کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بولا آؤ میں آپ کو ایک ماحول میں لے کے جاتا ہوں.
तो वो फिर मुझे साथ लेकर के आए यहाँ। पाकिस्तान भर में ही मैं तलाश करता रहा कि इस तरह का कोई माहौल मिल जाए मुझे, तो मुझे नहीं मिला माहौल। बहुत देर से जो है ना तलाश में है सुकून की, ज़िक्रुल्लाह भी करते हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बातनी राहत है ना, सुकून, जो रूहानियत, वो मैसर नहीं आ रही थी। तो फिर एक लास्ट टाइम मैं, एक मेरे दोस्त हैं नारोवाल के, उनके पास गए हुए थे, तो वो ना मदनी मुज़ाकरा हो रहा था, इस्लामी भाई हैं वो हमारे, वो मदनी मुज़ाकरा हो रहा था तो वो रोने लग गए। तो उनसे मैंने सुबह पूछा कि यार आप रोने क्यों लग गए थे? तो वो कह रहा कि मैं जब रजब के मदनी मुज़ाकरे उधर अटेंड करने गया था, मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो मुझे जब मैं देखा मेरे सुन्नत को, तो अब मैं उधर से इधर हूँ, तो मुझे वो वक्त याद आ गया कि मैं वहाँ से, यानी कि मुझे वो लम्हे याद आ गए कि मैं उधर बैठा करता था और मेरे सुन्नत को देखा करता था। तो मेरे अंदर बड़ी ना एक हैरत हुई कि यार ये कौन सी तड़प है, ये कौन सा जज्बा है कि सिर्फ इस वजह से रोने लग गए हैं कि ये मैं यहाँ बैठा करता था। इस दफ़ा मैंने ये इरादा किया कि जो मर्जी हो जाए, मैंने मेरे सुन्नत के कदमों में जाकर बैठ जाना है, और पूरा माँ ये बाखुदा ये इरादा करके आऊँ कि जो मर्जी हो जाए, अल्लाह के वली कदम में बैठ जाना है और इश्क़ रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आना है। और इसी मकसद के तहत अपनी तमाम मसरूफियात को तर्क करके अपनी स्टडी को पुष्ट पश्त डालकर इतना सफ़र करके आए हैं। कहा जाता है कि जब किसी कंट्री का फ्यूचर आपने देखना है कि वहाँ के नौजवानों को देखें आप, तो यकीन माने हैरत होती है कि वहाँ तरसते हैं नौजवान, तादाद होती है नौजवानों की जो है वो झगड़ने पर आ जाते हैं कि हम आगे बैठ जाएं, हम आमिर सुन्नत के सामने बैठ जाएं, हमें ये नसीब हो जाए। और कुछ होते हैं वो बैठे रहते हैं असर टाइम या जोर टाइम जाकर उधर बैठ जाते हैं, अपना वो उनकी तड़प होती है। तो बड़ी हैरत हुई कि यार ये जुनून इनके अंदर ये क्या है। हम यहाँ पर आए पहले हम ऐसे ही बैठे रहते थे, कुछ करते नहीं थे, लेकिन एक दिन जब अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिर हुए तो तब मैंने सोचा, मैंने कहा यार हम इस टाइम सो जाते हैं, अमीर अहले सुन्नत तो ये यहाँ पर अभी आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं सोते हैं। उस दिन से मैंने कहा यार हम क्या कर रहे हैं, हम जवान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो रातों को जाग कर अमीर अहले सुन्नत दीन का काम कर रहे हैं, इतनी उम्र हो गई है उनकी, तो हमें क्या है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से ये है कि मदनी मुज़ाकरे में भी पूरी शिरकत होती है, और उसके बाद जो बयान होता है वो भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ज़ाती तौर पर जो किताबें पढ़ने का मामूल है वो शुरू किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिकाफ की बरकत से। वो यानी कि हम देखते हैं कि इस उम्र के अंदर उम्र सीधा है और इस कदर वो यानी कि ज़ईफ़ हैं कि वो हमें बैठकर रात के 12-12 2-2 बजे तक हमें वो मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं। तो हम जो नौजवान हैं हम इतनी स्ट्रगल क्यों नहीं कर रहे। मेरा ज़हन है कि मैं यूनिवर्सिटी से जो है ना वो ला भी करूँ, साथ ही मैं पार्ट टाइम जो है दरस निज़ामी भी करूँ। ऑनलाइन जी ऑनलाइन नहीं, मैं नाइट क्लासेस जो है ना उसके लिए मैं लाहौर शिफ्ट होने लगा हूँ। इनफरादी अकेले तौर पर कोई इंसान इबादत करता है तो वो कर भी नहीं सकता, तंग आ जाता है। जैसे वो भाई ने बोला कि मैं बैग उठा के जा रहा था, लेकिन उसने मदनी मुज़ाकरा सुना तो वहीं पे बैठ गया कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ अलग से हो रहा है। तो ये माहौल जो है ना बड़ी चीज़ होती है, साथ में कोई मोटिवेट करने वाला होता है, वक्तन फ़वक्तन इस्लाह होती रहती है इंसान की। लेकिन यहाँ का माहौल बेहतरीन और ज़बरदस्त माहौल, यानी कि हर एतबार से ही। सबसे पहली चीज़ तो हर इंसान आपसे खुश इखलाकी से पेश आएगा, सब इंतहाई खुश इखलाकी से। मैंने बिलाल भाई को यहाँ आकर के बोला कि मेरे पास पैसे भी हैं, 30,000 रुपये मैं लेकर के आया हूँ, इस नीयत से कि वहाँ पे खर्चा होगा, 30 दिन गुजारेंगे, 1,000 रुपये कम से कम रोज़ का खर्चा तो होगा। तो बिलाल भाई ने बोला भाई नहीं, सब कुछ फ्री में होगा यहाँ पे। मैंने कहा फ्री में फिर ऐसा ही कैसा होगा, लेकिन बेहतरीन और ज़बरदस्त अंदाज में यहाँ पे माशाल्लाह खिदमत भी करते हैं, क्योंकि मैं एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर हूँ एक इदारे में। तो ऐसे ऐसे इदारे भी हमारे हैं जहाँ पे 25-30 हज़ार रुपया जो है वो फ़ीस है, वो दे करके पढ़ाते हैं लोगों को। और फिर नतीजा यही होता है कि वालदा का इंतकाल हो गया या वालिद का इंतकाल हो गया तो उनको सूरह फातिहा भी नहीं आ रही, जनाजा पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा, तो वो बाहर खड़े हैं, पीछे खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।
नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। आज 1447 हिजरी के रमज़ानुल करीम की 9वीं शब 9th नाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी आलमी मदनी मरकज़ में कसीर मुतकिफ़ीन जमा है, मदनी मुज़ाकरा है और लाइव टेलीकास्ट। अब सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बंद पड़ा अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे अपने कहे पर बिला वजह कायम रहता नहीं, भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 9वीं शब है, इसकी मुनासबत से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 9 ज़िया दुरूद सलाम में से, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन में उससे मुसाफहा करूं यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। سيدي الكريم، يقع كثيرا من الشباب اليوم في فخ الشعور بالضياع وفقدان الهدف نتيجة ما يواجهونه من إخفاقات أو ضغوط معيشية، مما قد يجر بعضهم إلى الحزن العميق أي الاكتئاب والشعور بأن حياتهم بلا معنى. فبماذا تنصحون هؤلاء لكي يستعيدوا بريق الأمل في نفوسهم؟ وكيف يجدد المسلم ثقته بربه الكريم أن بعد العسر يسرا ليخرج من عتمة اليأس إلى أنوار الرضا والعمل المثمر؟ نرجو منكم جرعة من الأمل تداوي هذه القلوب المنكسرة. جزاكم الله خيرا. سیدی امیر اہل سنت، آج کل بہت سے نوجوان ناکامیوں اور معاشی حالات کی وجہ سے مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ انہیں اپنی زندگی بے معنی لگنے لگتی ہے۔ ایسے نوجوانوں کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں امید کی کرن پا سکیں؟ ایک مسلمان مشکل کے بعد آسانی کے قرآنی وعدے پر اپنا یقین کیسے پختہ کرے؟ سیدی آپ سے عرض ہے کہ ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے امید کی کوئی خاص بات ارشاد فرما دیں۔ نہ ہو مایوس، آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہاں تو خیر دنیاوی معاملہ ہے، تو آخرت کا معاملہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ پاک بخشنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ کیا نوجوان، کیا دھیڑ، اب نفسا نفسی کا عالم ہے۔ دراصل وہ وجہ دین سے دوری، جو مذہبی ہوگا، جس کی سوچ مذہبی ہوگی، وہ اتنا مایوس نہیں ہوگا۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ خودکشیاں بہت ہوتی ہیں، تو لیکن علماء دین نہیں کرتے خودکشی۔ ایک بھی عالم دین کا واقعہ میں نے نہیں سنا، آپ نے سنا ہو تو مجھے بتا دیں کہ جس نے خودکشی کی ہو۔ تو دنیا دار قسم کے لوگ، سرمایہ دار، مالدار، یا دنیاوی ڈگریاں جو ہوتی ہیں، ڈگری ہولڈر، دنیا کی تعلیم والے، اور اس طرح کے لوگ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بین ثبوت ہے اس کا کہ دینداری میں تحفظ ہے، حفاظت ہے، دنیاوی معاملات میں بھی حفاظت ہے، آخرت کے معاملات میں بھی حفاظت ہے۔ تو اگر یہ صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں، نماز پڑھیں کہ اس میں سکون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، سکون اس سے ملتا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو اگر ہم اللہ کی یاد میں رہیں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے، پابندی کے ساتھ باجماعت
नमाज पढ़ेंगे और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे तो इसी में नजात है और इसी में दुनिया और आखिरत का सुकून और इत्मीनान है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। शुक्र करने के हवाले से हुजूर एक जगह पढ़ा था कि एक खातून की आदत थी कि वो रोज़ाना कुछ ना कुछ अपने लिए लिखा करती थी। तो एक दिन वो लिखती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा शौहर जो है वो रात भर जो है वो खराटे लेता है क्योंकि वो ज़िंदा है और मेरे पास है। यानी जो तकलीफ़ आई है तो उसमें भी वो शुक्र का पहलू, हम कहते हैं ना यार ये यूं करता है, तो कहा कि अल्लाह का शुक्र, वो खराटे लेता है लेकिन वो है तो सही मेरे पास। यानी वही कि शुक्र का पहलू देखेंगे तो हम खुद भी कई नेमतें पाए हुए होते हैं। क्या बात है। खराटे से तो होती तकलीफ है, नींद दूसरे की खराब होती है बाजों का, लेकिन ये कि ये इसकी जिंदगी की अलामत है कि मरा हुआ आदमी खराटे नहीं लेता। जी जी। तो इन मानो कर के ये है जिंदा, अल्हम्दुलिल्लाह है जिंदा, ये मर गया तो मैं क्या करूंगी। क्या बात है, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। My name is Nanzala and I am from the NED University of Engineering Technology. मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ख़ास तौर पे हुस्न ज़न के हवाले से जिस तरह से हम लोगों को, जिससे भी हम लोग मुलाकात करते हैं अपने साथी वगैरह से, दोस्त वगैरह से, हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए किसी से भी मिलते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई कहता है कि यार हर किसी से हुस्न ज़न रखना, या तो ऐसा जहन रखना कि मैं उसके साथ न्यूट्रल रहूं, मीन्स के पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि क्या पता वो नेगेटिव पर्सन हो या पॉजिटिव पर्सन हो, तो क्या ऐसा जहन उसके लिए रखना, क्या ये सही है या नहीं? हुस्न ज़न का मतलब है कि किसी के बारे में अच्छा गुमान, अच्छा ख्याल रखना। तो अब ये कि अगर ज़ाहिरी तौर पर कुछ समझ नहीं आती तो अच्छा गुमान रखेंगे। अब ज़ाहिरी तौर पर कोई मतलब गालियां निकाल रहा है तो उसके मामले में हम कैसे हुस्न ज़न कहाँ से लाएंगे कि ये अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो पता है गालियां निकाल रहा है सामने सामने, क्लियर कट। एक तो ये कि यहाँ हुस्न ज़न की तो सूरत ही नहीं है ना कोई। अच्छा, इसी तरह कोई शराब खाने से निकल रहा है तो शराब पी नहीं पी ये फाइनल नहीं है, लेकिन ये एक करीना है, एक अलामत है पक्की मजबूत कि ये हो ना हो शराबी है। तो इसको अगर किसी ने शराबी कहा तो ये बदगुमानी नहीं होगी कि वो इसी जगह तोहमत की जगह से निकला क्यों, कि लोग तो यही कहेंगे कि शराबी है। अच्छा, अब ये कि मुसलमान का कोई फेल है, कोई सा काम करे हो कि जिसमें मतलब खैर का पहलू भी निकलता है, शर का पहलू भी निकलता है, तो अब खैर का पहलू इख्तियार करेंगे जब तक शर का पहलू का पता ना हो। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमान के फेल को, उसके काम को अच्छे गुमान पर, हुस्न ज़न पर हमल करना ये वाजिब है। तो उसके बारे में अच्छा गुमान तलाश करें। अगर आप बदगुमानी हो रही है कि ये यूं भी गलत हो सकता है, यूं भी गलत हो सकता है, यूं भी गलत हो सकता है, तो भाई सच भी तो हो सकता है, अच्छा भी तो हो सकता है, इसकी ये नियत भी तो हो सकती है, वो नियत भी तो हो सकती है। तो इन्हें अच्छाई का पहलू उसमें तलाश करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, रमजान मरहबा। अल हदीद ला दोदा वाला दी रोदा, नानक साल पटा, नानक साल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु। हमारे पापा जान, मैं आपको
درود پاک کی کرتا ہوں زندہ-باد. میرے پیارے باپا جان، میرا آج 5واں روزہ ہے اور میرے لیے دعا فرما دے. میری عمر 8 سال ہے، میں نے 5 روزے رکھے ہیں. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے میٹھے میٹھے مدنی منوں کی، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعامل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور خاندان سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیس بک لائیو مولانا الیاس قادری فیس بک پیج پر، اسی طرح آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. یہ فیس بک پیج پر اکرام شاہ سوال کر رہے ہیں، اگر کوئی جلدی سحری کر کے سو جائے اور فجر کی نماز نہ پڑھتا ہو تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ روزہ ہو جائے گا، لیکن نماز قضا کرنا یہ تو گناہ ہے، نہ رمضان میں بلکہ جب بھی نماز قضا کرے گا جان بوجھ کر تو کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح رضویہ شریف میں کہ ایک نماز جو جان بوجھ کر قضا کرے یا ترک کرے تو ہزاروں سال جہنم میں جلنے کا، جہنم کے عذاب کا حقدار ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز، ان حدیث کا مضمون ہے یہ، جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو یہ رمضان شریف کے لیے خاص نہیں ہے، یہ فور ایور. جب بھی نماز جان بوجھ کر ایک بھی قضا کی تو یہ نے چھوڑ دی تو یہ مطلب اس کا گناہ ہے کہ معاذ اللہ جہنم کا عذاب. تو اس طرح رمضان میں اور سخت ہو جائے گا گناہ، تو اس لیے وہ روزہ بھی رکھنا فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے، اور 5 نمازیں فرض ہیں اور سارا ہی سال فرض ہے. روزہ سال میں ایک بار آتا ہے مہینہ رمضان شریف کا، اس میں رکھنا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور سارے مسلمان اللہ کرے نمازی بنے، روزے بھی رکھیں، اللہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے سلیمان ہاشمی ہیں، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا عمل اور نصیحت ارشاد فرما دیں جس سے دل نرم ہو. اللہ اللہ، دل کی نرمی کے تو مطلب یہ کہ اصل دل ہو گئے سخت گناہ کر کر کے. دیگر بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو گناہ نہیں ہیں لیکن دل کو سخت کرتی ہیں. مثلا بغیر بھوک کے کھانا، تو کھایا تو یہ بھی دل کو سخت کرے گا. بغیر تعجب کے ہنسنا، بغیر ضرورت کے بولنا، یہ بھی دل کو سخت کرتے ہیں. حالانکہ یہ تینوں چیزیں ہر صورت میں گناہ نہیں ہیں. اس طرح مطلب ہے کہ دل جب سخت ہوا تو نرمی جاتی رہی، اور دل کی سختی کے اسباب کو ترک کرنا ہوگا اور اللہ پاک کے ذکر میں لگنا ہوگا، اللہ کی یاد میں لگنا ہو تو یہ دلوں کو نرم کریں گے. قبرستان کی حاضری بھی دلوں کو نرم کرے گی کہ انشاءاللہ قبرستان کی حاضری دیں گے تو اپنی موت یاد آئے گی، اپنی موت یاد آئے گی، دل نرم پڑے گا گناہ سے. مطلب یہ کہ وہ ایسا بندہ بچے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر اللہ کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے بغیر زیادہ کلام دل کی سختی ہے، اور سخت دل لوگ اللہ پاک کی رحمت و عنایت سے سب سے زیادہ دور ہیں. ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا ارشاد ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا، اگر تو اپنے دل میں سختی یا اپنے بدن میں سستی یا اپنے رزق میں محرومی دیکھے
تو یقین کر لے کہ تو نے کوئی فضول گفتگو کی ہے. ایک خاتون نے حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اپنے دل کی سختی کے بارے میں شکایت کی. تو انہوں نے فرمایا موت کو زیادہ یاد کرو, اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا. اس عورت نے ایسا ہی کیا تو دل کی سختی جاتی رہی. پھر اس نے ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا شکریہ ادا کیا, یعنی کہ مطلب کیسا نسخہ بتایا کہ دل میرا سخت تھا اور موت کو زیادہ یاد کرنا شروع کیا تو دل نرم پڑا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا, اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو, کیونکہ زیارت قبور دل کی نرمی, اشکباری یعنی رونے کا سبب اور آخرت کی یاد دلانے والی ہے. حوالہ مسند امام احمد جلد 4 صفحہ 473, حدیث نمبر 13487. مسند انس بن مالک یہ بھی ہے. اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجیے. حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے لوہا نرم ہو کر اوزار اور سونا نرم ہو کر زیور اور مٹی نرم ہو کر کھیت یا باغ, آٹا نرم ہو کر روٹی وغیرہ بنتے ہیں, ایسے ہی انسان کا دل نرم ہو کر ولی, صوفی, عارف باللہ وغیرہ بنتا ہے. دل کی نرمی اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے. یہ نرم دل بزرگوں کی صحبت اور ان کے پاک کلمات یعنی ان کی پاک باتوں سے نصیب ہوتی ہے. حضرت سیدنا احمد بن ابو الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے تو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھ جا, دنیا سے بے رغبت لوگوں کی صحبت اختیار کر, اپنا کھانا کم کر لے, اپنی خواہش, اپنی مراد, اپنی خواہش سے اجتناب کر یعنی بچ, برے کاموں سے خود کو روک لے. تو یہ چیزیں بھی دلوں کو نرم کریں گی. تو اب یہ کہ دل کی سختی کا ہر کام ہم کر رہے ہیں, بری صحبت ہمیں حاصل ہے, اچھی صحبت نہیں ملی تو دل کہاں سے نرم ہوگا. بری صحبت میں دل سخت تر ہو جائے گا. بے نمازیوں کی صحبت, گانے باجے سننے والوں کی صحبت, فلمیں ڈرامے دیکھنے والے اور طرح طرح کی مطلب آج کل صحبتیں, بیٹھک ہیں, جو بھی ہیں. آپ مجھ سے زیادہ شاید آپ لوگ کو تجربہ ہو, بہت بری صحبتیں ہیں. گھر کے ماحول بھی بس جو بھی ہیں آپ کو خود اندازہ ہوگا. تو ایسے ماحول میں پلے بڑے آدمی, ایسی صحبتیں, اس کی ایسی صحبتوں سے اس صحبتوں میں دل بھی لگے, مذہبی صحبت میں دل نہ لگے, بعض و نصیحت کی بات سننے کا بھی جی نہ چاہے. حالت پہ ایسی ہے جیسے سوشل میڈیا پر وہ کوئی بھی ایسا کلپ جائے گا نا جو مطلب مذہبی ہو تو لوگ اس کو اتنا وائرل نہیں کریں گے, اور کوئی چٹکلا ہو, کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, تو طرح طرح کے ہوتے ہیں. وہ تو آپ کو مجھ سے زیادہ ہی ذرا پتہ ہوگا. تو اس طرح کے یا فلم ایکٹر کا ہوگا, کوئی معاذ اللہ ایکٹریس کا ہوگا, یا کوئی بے پردگی والا ہوگا, تو یہ دھڑا دھڑ وائرل ہوگا. مذہبی مولانا ہے, یوں کر کے نظر انداز نہیں ہوتا. یعنی کہ جیسے ہم جیسا آدمی اگر کوئی وہ پیج چلائے گا بھی نا تو اس کے فالوورز یا کیا کہنا ہے لائکس یہ کم ہوں گے. فلم ایکٹر کروڑوں یا کروڑوں تک نکل جائے گا. ہمارے کتنے مذہبی لوگ ہیں, نہیں اتنا سننے والے ان کو کم ہوتے ہیں جنرلی. الحمدللہ میرے تو چونکہ ایک بہت بڑی تنظیم ہمارے ساتھ پوری دنیا سے وابستہ, تو میرے تقریباً 61 لاکھ
61 लाख, ये पिछले दिनों पता चला था, 60 लाख से ऊपर। अभी 62 के आसपास तादाद। अच्छा 62 हो गए। तो ये बहुत बड़ा फिगर हम समझते हैं, लेकिन फिल्म एक्टर का करोड़ों में जाएगा। मशहूर फिल्म एक्टर होगा ना, शायद करोड़ या करोड़ों। तो ये फर्क तो ये हमारा ये हाल है, मतलब कि मजहब, ये तो शायद मेरे जो जितने हैं ना, इतने और मजहबी लोगों के कम होंगे जो इस्लाम की बात करते होंगे। इतनी बड़ी तंजीम तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी, तो इस वजह से बाकी लोग इतना नहीं मतलब इसको लाइक करते हैं। हम अगर ये जहन बना लेना, आप सिर्फ इतना जहन बना लेना कि दावत इस्लामी का जो भी क्लिप आया इसको फजा में छोड़ दें। हाँ, इसको आप भेजते रहें, जो भी क्लिप आए, जो भी टेक्स्ट, शायद बोलते तहरीर है ना, ये आए, जो कुछ आए, इसको आप मतलब आंखें बंद करके समझो कि चलाते रहें। अब जैसे कि वो आया बोलता रिसाला आ गया, तो ये वायरल कौन करे, है ना, वो करते रहे इसको। कोई सुने ना सुने, इस पर सवाब नहीं है कि सुनेंगे तो सवाब मिलेगा, अमल करेंगे तो सवाब मिलेगा, ये नहीं है। हमने आगे पहुंचाना है, समझे, कोई सुने या ना सुने। तो इस तरह इंशाल्लाह अगर हम ये बढ़ाते रहेंगे ना, आगे बढ़ाते रहेंगे, हमारा सवाब खरा होता रहेगा, सवाब की नीयत से बढ़ाते रहेंगे तो। और इस तरह मतलब ये कि हमारे जो मतलब यानी कि इस तरह बाज लोग होते हैं कि सिर्फ यानी कि वो देखकर राय रास्त पर आते। मुझे एक नहीं कई बार लोग मिले, सफर में जाता हूँ ना, तो वो यूं बाज गौर से देखते हैं, अच्छा आपको तो हमने सोशल मीडिया पे सुना है, आपका क्लिप हमने सुना है, आपके क्लिप में शौक से सुनता हूँ, और इस तरह लोग मिलते हैं मुझसे। तो इसका मतलब ये कि एक फायदा तो है ना कि एक मजहबी आदमी की तरफ इसकी रगबत तो हुई, और ये मजहबी क्लिप सुनने वाला है, फिर इसको मौका हुआ तो मजीद इनफरादी कोशिश भी हो सकती है, और ये नेकी के रास्ते पर नहीं हो तो आ जाएगा। तो यूं मतलब ये कि हम आगे बढ़ाते रहें तो इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। और कई लोग इस तरह हो सकता है चोट भी खाते होंगे सुनकर, कोई अच्छा सा क्लिप है खौफ खुदा वाला, सुनकर नमाजी भी बन जाते होंगे। जैसे मदनी चैनल को देखकर तो गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किए हैं, इसकी तो मदनी बाहरें कभी तो इक्का दुक्का तो ये भी है कि यहीं फ़ोन करके बराह रास्त मैंने कलमा पढ़ा है फ़ोन करके, ये वाक़यात भी हैं, है ना। तो ये इन चीज़ों से फ़ायदा है, लेकिन इतनी आम नहीं है ये चीज़ें। अब भी माशाल्लाह इस वक्त मदनी चैनल जो है ये एक वाहिद चैनल है दुनिया में, शायद किसी और ज़बान में होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन एक वाहिद चैनल है। उर्दू दुनिया का तो ज़ाहिर सामने ही अपने कि कोई ऐसा चैनल नहीं है जो 100% शरीयत के मुताबिक चला दे। ना इसमें औरत आती है, ना इसमें म्यूज़िक आता है, ना इसमें एड आती है, बिल्कुल साफ सुथरा दीन की खिदमत कर रहा है। अच्छा, अब ये चलता कैसे, जब एड भी नहीं, एड तो आमदनी के लिए होती है। अब जैसे कि दुआ इफ्तार, ये एक पिक टाइम है, तो यहाँ भी जो भी चैनल दुआ इफ्तार करेगा ना, उसमें इसकी एड लाजिम है, बिल्कुल उसका ज़ौक़ टूट जाएगा दुआ वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ एड का चक्कर नहीं है, हमारे पास आपकी जेबें हैं, हम इसमें हाथ डाल देते हैं, मोहब्बत देकर प्यार देकर हाथ से निकाल लेते हैं। ये चला गया मदनी चैनल में, इसके जेब में हाथ डाला कि बड़ा माल आएगा, सो मस्जिद बना दी। तो यूँ मतलब मुसलमानों के चंदे पर, मुसलमानों के फंड पर ये अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल भी चल रहा है, इतनी बड़ी तंजीम भी चल रही है, मदारिस, जामियातुल मदीना, मदारिसुल मदीना, मसाजिद की तामीरात और पता नहीं क्या 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 काम हो रहे हैं। अरबों रुपए का खर्चा आप ही लोग उठा रहे हैं, सीधी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी यानी तौफीक है लोगों को, कोई थोड़ा इनको मतलब तवज्जो दिलाने वाला हो, देने वाले हैं अल्लाह की रहमत से, और दीन की तरफ आने वाले भी हैं। अभी आज के तासुरात सुने ना हमने यार, आज के तासुरात तो बड़े मतलब बहुत अच्छे तासुरात में नोट किए कि ज़बरदस्त। अगर कोई मतलब ये तासुरात का पूरा क्लिप बना लेना, मेन तासुरात, और कोई मतलब यानी किसी को तरकीब में लाना हो ना दीन की तरफ, दावत इस्लामी की तरफ,
उसको ये दे दें, ये सुना दें उसको कि देखो ये इनकी पहले क्या सोच थी, अब क्या सोच है। एक माशाल्लाह एक ताजिर ने तो कमाल कर दिया, समझे कि 3 दुकानें चला रहे हैं। मुझे अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया है, तो साफ कह रहे थे, गरीब आदमी नहीं हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत दिया है। 3 शॉप्स हैं मेरे पास, मुलाजिमीन भी हैं वगैरह वगैरह। मैं अपना फ़ोन भी नहीं लाया हूँ साथ में, वो कहना चाहते थे व्हाट्सएप वगैरह नहीं लाया हूँ, एक छोटा सा वो जो मोबाइल फ़ोन होता है घर पे राब्ता वगैरह, मैं इसलिए नहीं लाया कि फिर ग्राहक मुझसे राब्ता करेंगे, समझे, तो इसलिए वो भी नहीं लाया मैं कि 1 महीना मैंने अल्लाह की राह में देना है और यहाँ गुजारना है। पहली बार जिंदगी का भरोसा नहीं कभी किया ही नहीं मैंने, इस तरह के कुछ तासुरात दे और मुझे माफी मांगने की आदत नहीं थी। कभी मेरी डिक्शनरी में सॉरी नहीं था, इस तरह का कभी मैंने सॉरी की क्या, मैं अकड़ू था, मगर ये कि मेरे में इतनी अल्लाह ने नरमी डाल दी, इससे आजिज़ी आ गई कि अपनी बीवी तक से माफी मांगी, सबसे माफिया मांगी, नौकरों से भी मांगी, अपने दोस्तों से माफिया मांगी, नौकरों से माफी मांगी। ये माफी मांगने वाले दिखा दिए गए, नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं, ये बैठे हुए। माशाअल्लाह मजा आ गया इनके तस्वीरात सुन। आप इन्हें भी कुछ बाबा नवाज दो बाबा। माशाअल्लाह इनकी दाढ़ी तो वैसे पूरी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह, यूं मजहबी सोच पहले से, जब तो पूरी दाढ़ी रखी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पक्का नमाजी हम सबको बना दे, आका की सुन्नतों का आईनादार बना दे। हो सकता है यहाँ से जुल्फे और इमामा शरीफ सजाने का भी जज्बा इनको मिलेगी। तो ये बॉस है, सेठ को कौन बोलता है? मुलाजिम सेठ से डरता है, अगर सेठ मजहबी जहन का ना हो तो इनको डर किस बात का। और अब तो मतलब ये अपने मुलाजिम से माफ़ी मांगने का हौसला रखते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं माशाअल्लाह। आका की सुन्नतें जितनी हैं जो अपने से बन पड़ती है उसको अपनाते चले जाएं, तो इंशाअल्लाह इस तरह बेड़ा पार होगा। और नरमी, लहजे में नरमी, गालियों से, झूठ से, गीबत से, वादा खिलाफियों से, इससे सबसे बचना है, क्योंकि कारोबारी के लिए मसला होता है, समझे। तो ये सब इन मसाइल से बचकर अपनी रोज़ी 100% हलाल करनी है, क्योंकि हम कमाएंगे ज़्यादा झूठ बोलकर बिल फर्ज, खाएगा कौन? बाल बच्चे तो खाएंगे, इनको क्या पता कि हमने क्या खिलाया इनको। एक हदीस पाक का मजमून है कुर्रतुल उयून में मैं बयान करता हूँ कि एक शख्स क़यामत के दिन लाया जाएगा अल्लाह की बारगाह में, तो उसकी जो आल औलाद होगी वो उस आदमी को घेर लेंगे कि या अल्लाह ये हमें हराम रोज़ी खिलाता, ये इससे हमारा हक दिला वगैरह, तो इससे जो भी होगा फिर ये नहीं, यहाँ तक कि इसको कहेंगे कि ये हमको हराम खिलाता था, हलाल रोज़ी नहीं खिलाता था। इस पर फरिश्ते उसको पकड़ लेंगे, पकड़ कर उसको जहन्नम की तरफ ले चलेंगे, और ये मुड़कर अपनी आल औलाद की तरफ हसरत से कहेगा कि अफसोस, अब मेरे कंधों पर सिर्फ उन गुनाहों का बोझ रह गया है जो मैंने तुम्हारी वजह से किया था। हलाल हराम का फ़र्क उठाते हैं, यार मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे ये है, मेरा बाल बच्चों का यूँ खर्चा है तो माँ बाप को यूँ देना होता है वगैरह, इसलिए हराम में बाज़ वक़्त और नफ्स और शैतान डाल देते हैं। तो ये नतीजा इसका, ये एक हदीस में इसका झलक आपको दिखाई मैंने। तो इसलिए वो गुनाह किसी के लिए भी नहीं करना, ना माँ के लिए करना, ना बाप के लिए करना, ना बच्चों के लिए करना है। काम वही करना है जो अल्लाह और रसूल का हमें हुक्म है, जो कुरान और हदीस शरीफ से हमें बताया गया वही करना है। रोज़ी देने वाला रब है, झूठ नहीं बोलेंगे तो भूखे थोड़ी मर जाएंगे। बोलते यार झूठ का ज़माना नहीं है, सच का ज़माना नहीं है, तो कब ज़माना आएगा सच का? सच का ज़माना है जो कि सच बोलते क्या सब भूखे मरते हैं क्या? सच्चों के सदक़े में दुनिया तुम्हारी चल रही है, समझ जाओ। हाँ, वरना दुनिया कभी की गरक हो जाती। एक से एक सच्चे पड़े हैं दुनिया में, मेरी तेरी नज़र उन तक नहीं पहुंची वो अलग बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक का हुक्म फिर कहाँ रखेंगे हम? कूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चे जब नहीं है, सच का ज़माना नहीं है, तो रब के हुक्म का क्या होगा इस आयत मुबारक का? जब सच्चे ही नहीं रहे तो हम किसके साथ होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का इरशाद भी हक, और झूठों पर तो लानत है। लानत अल्लाहि अलल काज़िबीन, मैं नहीं कर रहा लानत, कुरान कर रहा है। लानत अल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो अल्लाह पाक हमको सच्चा बनाए और सच्चों के साथ रखे, और क़यामत में भी सच्चों के साथ उठाए। सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अदब का सिलसिला मजनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मजनी मुज़ाकरा। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई एक तस्वीर में कुछ यूं लिखा था कि अगर मस्जिद में बच्चे शरारत करें तो उसे दरगुजर करें, क्योंकि ये बच्चे टीवी इंटरनेट छोड़कर मस्जिद में आते हैं। कल यही हमारे बाद दीन को जिंदा रखेंगे। अमीर अहले सुन्नत, इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? इल्म और उलमा से दूर रहने वालों की नसीहत है ये, जबकि हदीस पाक में तो ये है कि छोटे बच्चे को जिससे गंदगी होने का अंदेशा है, यानी कि अंदेशा नहीं, जन्ने गालिब है, यानी ख्याल जमता है कि कर डालेगा, उसको लाना हराम है। और बड़ा है कि ये गंदगी नहीं करेगा इतना बच्चा, तो उसको लाना मकरू। और फिर ये कि बच्चे जो शरारतें करते हैं ना, उनको मस्जिद में लाना गुनाह है, ये उलमा का फतवा है। अब मस्जिद में बच्चे, आप बोलते हैं इनको शरारत है, तो ये इसमें ये तो लिखा नहीं है कि शरारत जो करता है ना उसको समझा बुझा कर मस्जिद में लाए कि देखो शरारत नहीं करना, जैसे ही आपने शरारत की हम फौरन मस्जिद से आपको घर भेज देंगे, समझा बुझा कर। फिर अपनी बिल्कुल नज़र में रखें उसको, कोई बड़ा समझदार बच्चे की बात कर रहा हूँ, नज़र में रखें तो ठीक है, लाने बिल्कुल लाना चाहिए कि ये नमाजें देखे, नमाजी देखे, दीन समझे, इसको मस्जिदों से मोहब्बत हो। लेकिन ये बच्चे तो कबड्डियाँ खेल रहे होते हैं मस्जिदों में, और दौड़ रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, तो ये आप बोलोगे इंटरनेट छोड़कर, तो अच्छा आप मस्जिद में तरावी में ले आए, चलो इंटरनेट से छुड़ा कर, या वो जो भी आप सोशल मीडिया से छुड़ा कर, या फिल्म से छुड़ा कर। तो मस्जिद में तरावी में कितनी देर लगी? 1 घंटा ले लो, 23 घंटे क्या करेंगे ये? फिर वही करेंगे जो ये करते थे, अगर यूँ देखा जाए तो बहरहाल हुक्म शरीयत जो होता है ना, उसमें अपनी तरफ से वो कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उलमा से जो भी अगर कोई सा तहरीर चलाते ना, किसी आलिम दीन से इसको चेक करवा लें, क्योंकि ये एक गुनाह की तायद इसमें पाई जा रही है। गुनाह की तायद भी गुनाह है कि इन्हें ये देखते हैं तो इनको शरारतें करने दो, मस्जिद शरारत करना गुनाह है मस्जिद में, तो आप शरारत की इजाज़त दे रहे हैं। फतवा रज़विया में एक फतवा है जिसका मैं मुख्तसर था कुछ इसमें हासिल जो वर्ष कर रहा हूँ, कि जो मतलब है किसी मस्जिद के करीब गाने बजते थे, तो अब इसको क्या करें? तो ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। मस्जिद के पास जो गाना बजाते थे नमाजों के टाइम पे, अब वो मुस्लिम शायद ना हो, गैर मुस्लिम हो, तो अब ये कोर्ट में मामला पहुंचा। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा तलब किया गया, फतवा तलब किया गया कि हम इनसे क्या क्या मतलब वो तरकीब बनाए कि ये हमारी जान छूटे। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ने बड़ा प्यारा मतलब मशवरा दिया, बहुत समझ में आता है कि ये फरमाए कि इनको ये मत कहना कि नमाज के औकात के अलावा गाने बजाओ, नमाज के औकात में नहीं बजाओ। इस तरह कहोगे तो ये नमाज के औकात के अलावा गाने बजाने की इजाज़त बिसराहत हो गई, खुले लफ्ज़ों में कि आप बजाओ गाने नमाज के वक्त के अलावा, ये नहीं कहना है। बल्कि इनको ये, क्योंकि वो गैर मुस्लिमों का दौर था, तो तब ये आला हज़रत ने फरमाया कि इनको ये आप रखें कि नमाज के औकात में गाने मत बजाओ। यही है ना, नमाज की टाइमिंग्स में गाने मत बजाओ, पर इतना कहना। अगरचे बात ये वही है, लेकिन इसमें ये खुले लफ्जों में गानों की तायद नहीं है। ये कहाँ कहा कि इसके अलावा बजाओ, नमाज के औकात में गाने नहीं बजाओ। तो ये सिर्फ 1-2 लफ्ज के
फर्क से बात बन गई और वो गुनाह के उससे निकल आए। या किसी की मतलब यानी एक मिसाल फतह रज़विया में और भी बड़ी समझने की जो कुफरिया कलमात के बारे में सवाल जवाब में इस तरह की है, तो उसको मैं अपने लफ्ज़ों में अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ कि गाहक आया दुकानदार के पास, दुकानदार मुस्लिम है, गाहक गैर मुस्लिम है, तो उसने मतलब वो कोई बैठा हुआ, कोई सौदा हो रहा हो, कोई देर हो गई होगी, तो उसने कहा अच्छा मैं जरा ये बांध बूंद के रखना, मैं अपनी इबादत करके आता हूँ। अपनी इबादत जो मतलब ये नहीं, उसको पता था कि ये अपनी इबादत, इसकी इबादत क्या है, गालिबन पूजा, अपनी पूजा करके आता हूँ, मेरा ये टाइम है। तो उसको अगर ये कहा कि हाँ जा जा पूजा करके आ जा, तो ये कुफ्र है कि पूजा करेंगे, इसने इजाजत दी इसको। इसको मतलब ये ना कहे कि जा पूजा करके आ, उसको ये कहे कि मैं बैठा हुआ हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। इस तरह के अल्फाज कहे कि वो पूजा की जो गैर खुदा की इबादत की उसमें इजाजत ना पाई जाए। तो थोड़े से फर्क से बंदा कुफ्र से बच जाएगा, थोड़े से फर्क से गुनाह से बच जाएगा। ये एहतियातें करनी है। कई साल पहले एक बार वो रात को मेरे घर के जो पीर कॉलोनी में घर था वो इलाका, तो किसी की शादी का कोई मसला होगा, तो बड़ा मतलब है कि तूफान बदतमीजी, कुछ दूर से इतनी आवाज़ आ रही थी, सोना जागना सब दुश्वार, गाने या पता नहीं कोई भंगड़ा या कोई हो रहा होगा, कोई शादी का फंक्शन था। तो मैंने भेजा, मतलब गालिबन मैंने समझा कि इनको भेजा कि इनको ये मत बोलना कि आहिस्ता आवाज से गाने बजाओ, आहिस्ता आवाज से बजाओगे तो ये इजाजत मिलेगी ना। इनको ये बोलो जाकर, या तो ये बोलो कि गाने बंद कर दो, तकलीफ हो रही है, या खाली इतना कि जैसे तकलीफ हो रही है, शोर हो रहा है, लोगों को सोने दो वगैरह, इस तरह मतलब ये समझा कर भेजा था कि किसी तरह भी गाने बजाने की इजाजत ना पाई जाए। भाई मस्जिद है, आहिस्ता बजाओ गाना, तो गाने बजाने की तो इजाजत दे दी ना कि आहिस्ता बजाओ, जोर से बजाओ, गुनाह तो है नहीं है म्यूजिक वाला गाना। तो ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फतवे से मुझे समझने को मिला। तो ये अगर आपको याद रहे तो ये बहुत काम आएगा आपको, बहुत सारे मामलात में तरकीब बनेगी कि यार मेरे अल्फाज से गुनाह की इजाजत तो नहीं जा रही, तो वो अल्फाज फिर सोच समझ कर बोलने कि गुनाह की इजाजत ना जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, जिन भूत से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जिन भूत से बचने के लिए आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। जब भी सोएं तो आयतुल कुर्सी पढ़ लें। लोग आयतल कुर्सी बोलते हैं, आयतल कुर्सी या आतल कुर्सी, ये नहीं है, आयतुल, तुल है, तल नहीं है, आयतुल कुर्सी। तो ये नहीं याद तो याद कर लें, ये पढ़ा करें, तो इससे इंशाल्लाह आपकी भी, आपके घर की भी, आपके अतराफ के घरों की भी हिफाजत होगी। और हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की भी आदत डालें कि मरते ही, यानी मौत रुकावट है जन्नत में और आप में, इससे पढ़ने वाले और जन्नत में रुकावट मौत है, तो मरते ही जन्नत में दाखिल होगा। ये हदीस पाक में बिशारत है। आयतुल कुर्सी बच्चों को भी याद करानी चाहिए, ये पढ़ा करें, तो इंशाल्लाह ये पढ़ते रहेंगे। और भी औराद हैं कि जिनके, जैसे हमारा कादरिया रज़विया सिलसिला है, उसमें भी ऐसे विर्द हैं कि अगर ये पढ़ने की आदत बनाए ना, तो इंशाल्लाह ये जिन, जादू, नज़र वगैरह से हिफाजत होती रहेगी, आफतों से बचत होगी इंशाल्लाह। अब पढ़ते नहीं है ना, अब पढ़ते भी तो 2 दिन पढ़े फिर छुट्टी, सुस्ती हो गई, ये नहीं, बाकायदा पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दुकान पर 2-4 दिन के लिए कोई चौकीदार रखता थोड़ी है, दुकान है तो चौकीदार तो परमानेंट, जिस दिन चौकीदार की छुट्टी उस दिन आपकी दुकान की भी हो सकता है माल सामान की छुट्टी कर दे कोई।
तो इस जो सोने की दुकानें गोल्ड की और ये होती है उनमें हर वक्त चौकीदार वो उस जगह मुतय्यन होते हैं, तो फिर भी डाकू डाकू हैं, वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े वो दूसरी नमाज तक अल्लाह पाक की हिफाजत में रहेगा। हवाला मौजम कबीर हसन बिन अली बिन अबी तालिब। इमाम हसन मुजतबा नवास रसूल ये इस हदीस पाक के रावी हैं, अपने नाना जान से इन्होंने रिवायत की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये फर्ज नमाज के होती है आयतुल ये भी है फजीलत, और जन्नत में जाने वाली फजीलत भी है, हाँ, कि मरते ही जन्नत में दाखिल हो। ये पढ़ा करो आयतुल कुर्सी, 1 मिनट नहीं लगेगा यार, एक आयत है। सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम का फरमाने बरकत निशान है माह रमजान में घर वालों के खर्च में कुशादगी करो, क्योंकि माह रमजान में खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने की तरह है। रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, रमजान मरहबा। मोमिन का दिल खुशी से यूं झूमता है गोया, मोमिन का दिल खुशी से यूं झूमता है गोया, मोमिन का दिल खुशी से यूं झूमता है गोया। बेजान तन में आई हो जान मरहबा, बेजान तन में आई हो जान मरहबा। रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, रमजान मरहबा। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है माह रमजान की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आप भी देखें बुजुर्गों का मदनी चैनल, आप भी देखें, आप भी देखें, आप भी देखें बुजुर्गों का मदनी चैनल। मेरा सवाल है कि अगर किसी शख्स को दमे का मर्ज हो और वो रोज़ा रखे तो रोज़े की हालत के अंदर नेबुलाइज करवा सकता है या नहीं? माशाअल्लाह, बुजुर्ग का सवाल। दमे का मरीज होता तकलीफ में, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अगर आपको भी है खुदा न खास्ता नहीं है तो अल्लाह महफूज रखे, हम सबको महफूज रखे। नेबुलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बुंदकियाँ छोटी छोटी दवा की उड़ती हैं, बारीक बारीक कतरे उड़ते हैं, ड्रॉप्स, और वो सांस में जाएंगे, दिमाग में चढ़ेंगे, तो ये इसलिए इसका रोज़ा टूट जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फैज़ान मदीना जोहर टाउन लाहौर में 30 दिन के एहतिकाफ में शिरकत है। सवाल है कि रोज़ादार जब सोता है तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो सोकर उठते हैं तो उनके मुंह से खून आता है, तो क्या जो वो खून आता है ये खून आने की वजह से उसका रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। मुंह में खून आने से रोज़ा नहीं टूटेगा, अलबत्ता खून अगर इतना आया कि थूक पर गालिब है, थूक जर्द हो गया, पीला हो गया और ये उतर गया हलक के नीचे, तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। जबकि टेस्ट खून का महसूस, जबकि टेस्ट महसूस ना हो खून का, और अगर खून पर खून गालिब था, थूक पर खून लाल हो गया, थूक लाल हो गया और वो उतर गया, या वैसे डायरेक्ट ही खून उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। और डायरेक्ट उतरने की सूरत में ये कि जैसे बहुत बारीक उतरा और टेस्ट ही महसूस नहीं हुआ, पता नहीं चला, तो रोज़ा। इसमें इसकी यही तशरीह है कि अगर तो खून गालिब है या बराबर है
تو صرف اترنا ہی یہ روزے کو توڑ دے گا، اور اگر کم ہے تھوک سے تو پھر اس میں یہ شرط ہے کہ اس کا ذائقہ محسوس ہو۔ تھوک اور خون برابر ہے یا خون زیادہ ہے تو اب یہ کہ یہ تھوک ملا خون ملا تھوک جو ہے یہ جائے گا حلق سے نیچے، روزہ ٹوٹے گا۔ اور اگر تھوک زیادہ ہے خون کم ہے جس کی نشانی ہوئی کہ یہ پیلا پڑ جائے گا تو تھوک، تو یہ اگر اتر گیا حلق سے نیچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر ذائقہ محسوس، جبکہ ذائقہ یعنی ٹیسٹ محسوس نہ ہو۔ اگر ٹیسٹ محسوس ہوا خون کا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایس ایم ایس کے ذریعے فیضان رضا ہیں، مظفر آباد کشمیر سے ان کا تعلق ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں روزہ لیٹ کر کے افطار کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو یہ مکروہ ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی روزہ جب یقینی طور پر سورج ڈوب گیا تو اب بلا وجہ دیر نہ کرے، دیر کریں گے تو کراہت آئے گی مکروہ، تو یہ مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ ہے۔ بہتر یہ کہ سورج غروب یقین ہوتے ہی افطار کر لے، اس کی حدیث سے پاک ہے نا، میری امت بھلائی پر خیر پر رہے گی۔ یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت، آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ گدھے کی اونچی آواز کو برا سمجھا جاتا ہے، کیا وہ اپنی شکایت کر رہا ہوتا ہے؟ گدھا محنتی جانور ہے، گدھا اپنے راستے کو کیسے پہچان لیتا ہے؟ پھر بھی لوگ گدھے کو کم عقل کیوں کہتے ہیں؟ لوگ سست اور کاہل اور بے وقوف انسان کو گدھے سے کیوں تعبیر کرتے ہیں؟ وہ گدھا شکایت کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہو، گدھے کی آواز ہوتی مکروہ یعنی پسند نہیں آتی، یہاں مکروہ سے مراد لیکن ناپسندیدہ ہوتی ہے آواز اس کی۔ تو جب بھی گدھا رینک، اس کا گدھے کو رینک نہ بولتے، گدھا جب بھی رینکے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ ہے کہ شیطان کو دیکھ کر یہ رینکتا ہے نا۔ جب بھی اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کے وقت کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کا رینکنا سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ جانور وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ حوالہ المستدرک جلد 4 صفحہ 316، حدیث نمبر 7762۔ اب یہاں لفظ شیطان نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ تو یہ بہرحال یہ کہ شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم یہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ کتے بھونکے رات میں یا گدھے، یہ رات کا اس میں لکھا ہے، رات کے وقت۔ اچھا، دوسرا یہ کہ گدھا فریاد کرنا اس لیے رینکتا ہے، تو یہ ان معنوں کر بھی ہو سکتا ہے کہ گدھے پر اگر ظلم ہو، ڈنڈے مارتے ہیں بیچارے کو، زخم کر کے پیچھے اس کے اور ڈبہ پچکا کر اس کی دھار اس کے پیچھے لگاتے ہیں، جو بھگاتے ہیں نا، اس کو اس طرح بھگاتے ہیں، تو اس طرح اس کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے رینکتا ہو، یعنی یوں فریاد، اس کو فریاد کا نام دیا جائے۔ تو یہ گدھا دعا بھی دیتا ہے، بد دعا بھی دیتا ہے، یہ دعا بھی دے سکتے ہیں، بد دعا بھی دے سکتے ہیں۔ یہ جانوروں کا ہے کہ جانور پر ظلم کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے بد دعا دے، تو جانور کی دعا بد دعا یہ قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ یہ بڑے یعنی کہ تھوڑا ٹھاٹ باٹ والے اونچے گھرانے کے نوجوان تھے،
तो ये मकतब में जा रहे थे पढ़ने के लिए, रेशमी चादर डालकर टिप टाप के साथ। तो एक गधा देखा कि जिसके पीठ पर कुछ जख्म था और कौवे उस पर ठूंगे मारते थे और गधा बेचैन था, इस्तराब था उसमें कि ये तकलीफ हो रही थी उसको, था बीमार, इस तरह का था वो। तो इनको बड़ा रहम आया और इन्होंने अपनी रेशमी चादर उस जख्मी गधे के जख्म पर उड़ा दी। तो उस गधे को बड़ा सुकून हुआ, उसने इनकी तरफ देखकर कुछ दुआ दी। क्या दुआ दी वो लिखा हुआ नहीं है, वो उसको देखा और दुआ दी उसको। तो इस तरह हजरत उस्मान हेरी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर दिल में हलचल मची, दुनिया से दिल उच्चाट हुआ, दीन का जज्बा पैदा हुआ और आखिरकार ये बहुत बड़े आलिम बने, बहुत बड़े बुजुर्ग बने और इनके वाक़यात किताबों में लिखे। तो इनकी शुरुआत, जो इनके अंदर जो टर्निंग पॉइंट आया, वो ज़ख्मी गधे की इमदाद। तो यूँ जो भी हो इस तरह का मामला तो हमें मतलब इसकी तरकीब करनी चाहिए। मैं अपना वाक़या भी कई बार शेयर किया है कि एक बार मैं अपने घर से नमाज के लिए जा रहा था, जब मैं मूसालेन में हमारा घर था, तो एक गधा बीमार था, किसी ने इसको डाल दिया था, वैसे ही फेंक दिया था बीमार, जिंदा था। अब ये कि उसकी गर्दन में तकलीफ थी या क्या था, वो बार बार गर्दन रगड़ता था, तो शायद कोई खारिश होती थी और बेचैनदा खड़ा भी नहीं हो पाता था, पड़ा हुआ था। तो मेरे को वाकई बड़ा तरस आया और उस वक्त ये सैयदना उस्मान हेरी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया पढ़ा था या नहीं ये मुझे याद नहीं है। तो मैंने मतलब ये दावत इस्लामी भी पता नहीं शुरू हुई थी या नहीं थी, तो मैंने मतलब घर से गुदड़ी मंगवाई अपने, या खुद लाया या किसी को भेजा जो साथ होगा, आप यार गुदड़ी ले आए। मेरे घर से गुदड़ी आ गई, घर करीब था, 20, 30, 40 कदम पर घर था मेरा। तो गुदड़ी आ गई, मैंने इसकी जैसे इसने यूँ रगड़ने के लिए गर्दन ऊंची की ना, मैंने गुदड़ी अंदर डाल दी उसके। तो अब इसने वो रखा, उसने सुकून उसको मिला होगा, तो गर्दन रखी इसने और मेरी तरफ देखने लगा। तो ये मुझे यूँ लगा कि शायद इसने मुझे दुआ दी, किया और हो सकता है उसकी दुआ की बरकत से आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। कुछ नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह पाक जानवर की दुआ कबूल कर रहे। चींटी का वाक़या है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों के साथ निकले, वो बारिश कहत साली थी, बारिश नहीं हो रही थी, तो आपके चलो भाई दुआ मांगते हैं, इस्तिस्का कहते हैं इसको, इस्तिस्का के लिए निकले, तो नमाज पढ़ी जाती, नमाज इस्तिस्का। तो इस तरह तो आपने देखा रास्ते में कि एक चींटी पीठ के बल लेटी हुई है और उसके 2 हाथ, अगले पाँव जो थे वो हाथ, पिछले पाँव जो पिछले होते वो पाँव, तो ये 2 पाँव उसके अगले ही उठे हुए थे। तो ये तो अल्लाह के नबी थे, इनको सब अल्लाह बता देता था, अल्लाह के अता से जानते थे। तो आपने फरमाया कि देखो चींटी दुआ मांग रही है बारिश की, चलो काम हो जाएगा। और चींटी की बरकत, उसकी दुआ की बरकत काम आ गई। तो इस तरह मतलब ये कि चींटी की दुआ, यह हदीस पाक है, तो चींटी की दुआ से बारिश। तो यूँ इनकी जानवरों की दुआ बद्दुआ सब कबूल है। जानवरों की खिदमत, इन्हें खिलाना पिलाना ये कार्य सवाब है। जैसे बाद लोग परिंदों को खिलाते हैं, चींटियों को चीनी वगैरह डालते हैं, तो इस तरह मतलब ये अच्छा काम है, ये बुरा काम नहीं है। कि हदीस पाक में हर तर जिगर वाली में अजर है, यानी कि वो जिसमें जान है उसको खिलाना पिलाना ये सवाब का काम है। इसको राहत पहुंचाना, तकलीफ से बचाना, इसमें काम है, इसमें सवाब। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या भी बड़ा बिल्कुल यानी कि यूनिक, अनोखा वाक़या कि आपका जब विसाल हुआ, वफात हो गई, किसी ने ख्वाब में देकर पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। तो फरमाने लगे कि एक बार मेरा काम यूँ बना कि एक बार मैं लिख रहा था तो मेरी इंक पर, मेरी निब पर
एक चूंटी वो मक्खी बैठ गई और मैं समझ गया कि ये स्याही चूस रही है, प्यास लगी हुई है इसको। तो मैंने अपना लिखना रोक दिया, तो ये मक्खी चूसती रही। फिर जब वो सैर हो गई तो ये उड़ गई और ये फिर मैं अपने काम पे। तो मरने के बाद ये काम आ गया और मुझे कि मक्खी पर रहम करने की वजह से मुझ पर रहम किया गया। तो ये कि हम तो सोच भी नहीं सकते। इस तरह के और भी वाक़यात मिलते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक कुत्ता प्यास से कुएं के पास तरस रहा था, वो जबान निकाल रहा था और मिट्टी गीली चाट रहा था। वो एक बिल्कुल जालिम शख्स, गुनाहगार शख्स वहां से गुजरा, उसको भी प्यास लगी थी। तो उसने देखा इसको, तो बोला यार इसको मेरी तरह से इसको भी प्यास लगी है, मैं तो पानी हासिल कर लूंगा। ये बेज़बान जानवर ना ये बोल सकता है किसी को, ना ये अंदर से पानी कुएं से निकाल सकता है। तो अपना मोजा डाला कुएं में, उसमें पानी निकाला, कुत्ते के हलक में टपकाया, पिलाया। अल्लाह पाक ने उस कुत्ते के साथ भलाई करने की वजह से, पानी पिलाने के सबब उसकी मग़फ़िरत कर दी। तो बुखारी की हदीस है। तो ये मतलब अल्लाह पाक के नुक्ता नवाज है। कौन सी अदा पसंद आ जाए बंदे की, वो उसको नवाज दे। अच्छा, वो कुत्ते और इसके बारे में जो बात हुई थी ना, रेंकने, गधे के रेंकने से, तो अबू हुरैरा सहाबी नबी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से उसका फजल मांगो, क्योंकि वो उसी वक्त बोलता है जब उसे कोई फरिश्ता नजर आता है। और जब गधे के रेंकने की आवाज़ सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि वो उस वक्त शैतान को देख रहा होता है। हवाला सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 3459। तो यूं मुतलकन भी आ गया कि रात हो या दिन, गधा उस वक्त बोलता है, ये रेंकता है, होंची जो करता है ना, इसको रेंकना बोलते हैं। ये उस वक्त रेंकता है जब ये शैतान इसको नजर आता है। तो इसलिए हम शैतान से पनाह मांगे, हमें ये हुक्म दिया गया। और मुर्गा बोले तो अल्लाह का फजल मांगे कि ये मुर्गा अजान दे, बांग दे, मुर्ग की आवाज़ सुनो, ये लिखा हुआ है। तो वो उस वक्त बोलता है जब कोई फरिश्ता नजर आता है। हमारे यहाँ मुर्ग की आवाज़ को बांग या अजान कहा जाता है कि मुर्गा अजान दे रहा है, जैसा हमारा मुर्गा बांग दे रहा है। तो आवाज़ तो हुई, ये भी आवाज़ तो हुई ना, यही कि तो इसको अजान या अब ये इसमें कहना शर्रा हो तो पता चले, लेकिन अजान आवाज़ तो है, अजान आवाज़ तो है ना। अजान होती है ऐलान। ये क्या पता इसके कि मैंने फरिश्ता देखा है, ये ऐलान कर रहा है गोया। ये मैं अपनी तरफ गोया मतलब जैसे अब फरिश्ता मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तुम अल्लाह से फजल का सवाल करो, मांगो उससे दुआ फजल की कि अल्लाह हम पर फजल कर दे, अपने फजल से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। और फजल की कोई दुआ भी फिक्स है, आई है। वैसे तो नहीं, आला हजरत ने बड़ी खूबसूरत दुआ, खूबसूरत दुआ लिखी आला हजरत ने। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका फदलकल अज़ीम, यानी ए अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल अज़ीम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल करता हूँ। सुभान, वो दरमियान में वसीला भी फजल अज़ीम यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया है, क्योंकि फ़ज़ल मांगने का हुक्म है ना कि अल्लाह से फ़ज़ल मांगो। तो सबसे बड़ा फ़ज़ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सबसे बड़ा वसीला भी फ़ज़ल के एतबार से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यूँ अल्लाह की बारगाह में यूँ दुआ की है, उर्दू में भी हम कर सकते हैं कि तेरे फ़ज़ल अज़ीम के वसीले से तेरा फ़ज़ल अज़ीम मांगते हैं। सुभान अल्लाह। मिल गए वो तो फिर कमी क्या है, मिल गए वो तो मिल गए वो तो फिर कमी क्या है, दोनों आलम को पा लिया
ہم نے دونوں عالم کو پا لیا ہم نے. آقا مل جائیں اب تجھ سے تجھی کو مانگوں تو سب کچھ مل جائے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماہ رمضان المبارک 1447 قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں. کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 17,025 17,025. اسلامی بہنوں کی تعداد 37,651 37,651. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 54,676 54,676. 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 22,655 22,655. اسلامی بہنوں کی تعداد 39,092 39,992. ٹوٹل تعداد 61,747 61,747. ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 4,176 4,176. اسلامی بہنوں کی تعداد 16,806 16,806. ٹوٹل تعداد 20,982 20,982. ماشاء اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وہ دارالفتاء اہل سنت کا ایک بہت پیارا فتویٰ ہے. سوال ہے کیا مرغ جنات کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے؟ جواب جی نہیں، مرغ فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے. اب انہوں نے آگے بخاری شریف کی حدیث کوٹ کی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے. اور جب تم گدھے کا رینکنا سنو تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے. تو یہ اذان کا بھی ترکیب بن گئی. اچھا، مزید اس حدیث پاک کی شرح، یہ حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3303 صفحہ 447. اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہر یہ کہ یہاں ہر مرغ کی ہر آواز مراد ہے جس سے ہم مرغ کا اذان دینا کہتے ہیں. بعض لوگوں نے تہجد کے وقت کی مرغ کی آواز مراد لی، بعض نے صبح صادق کے وقت کی آواز، مگر پہلے معنی زیادہ ظاہر ہے کہ حدیث میں کوئی قید نہیں. مرغ کی
हर अजान पर दुआ मांगना चाहिए। यानी मुर्ग रहमत का फरिश्ता देखकर बोलता है, उस वक्त की दुआ पर फरिश्ते के आमीन कहने की उम्मीद है। हवाला मिरअतुल मनाजी जिल्द 4 सफ़ा 32। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज आप ये जहाँ ये बीच बीच में हमने दोनों को किया बुलाया ना, है। तो वो एडजस्ट करके वो ऊपर ले लीजिएगा। बीच में भी हदीस पाक बयान की भी ऊपर लेनी है जहाँ इसका तस्करा था अज़ान का। इंशाअल्लाह करीम। आज आप दोनों को बुलाया है, पता है ना क्यों बुलाया? जी बिल्कुल। क्यों बुलाया? बात करने के लिए। आप बात करने आप के भी लिए बात करेंगे? तो बात करें ना फिर। मैं लेकिन बात कब करनी है, किस वक्त तो करनी ये है? भी आप बताएंगे। नहीं, मैं थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूँ कि ना, जाहिर है बात करने का एक तरीका होता है, बात करने का वक्त होता है। जब आपने हमें यहाँ बुलाया है तो इसका मतलब आपको पता होगा कि हमें बात करने का तरीका आता है, तो इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए ना। तो ये पहले उनको बात तो करने दें। तो बात वो अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप भी कर लें। भाई बात ही गलत तरीके से स्टार्ट की ना। बात का मतलब बुलाया इन्होंने सीट पर में बिठाया इसलिए है कि हम बात करने के लिए कैपेबल है, तो बात करेंगे। जब आपका टाइम आएगा अभी बात कीजिएगा। टाइम स्टार्ट करें ना, बात स्टार्ट करें। आप दोनों बोलने ही देखें। अब है ना, आजादी राय में कितनी आजादी हो कितनी ना हो, ये गुफ्तगू करनी थी, लेकिन ये तो शुरू से ही आजाद हो। अगर आप ये बताएंगे कि हमें कितनी गुफ्तगू करनी है और किस किस मौके पे करनी है, तो फिर तो आजादी राय का मकसद ही फौत हो गया। तो सोशल मीडिया पे मतलब आजादी राय का ये मतलब है कि आप कुछ भी बोल दें, किसी के लिए भी बोल दें। बात ये मिसाल दी जाती है, अगर किसी को जूता भी मारे ना तो 2 शाले में लपेट के मारे आप। अच्छा, 2 शाले में लपेट के जूता मार देंगे तो ये काबिल कबूल है? एक जूता मैंने यूं मारा, ठक डायरेक्ट, उसने बोला ये क्या था? एक जूता में करीब लाओ ठक मारूं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ जूता मारे लेकिन आवाज नहीं आए। देखिए, असल में मसला ये है कि आजादी इजहार राय में और बदतमीजी में ना एक बारीक लाइन का डिफरेंस है बहुत। सोशल मीडिया पे वो बिरयानी वाला आ रहा है या एक्सवाइज़ेड कोई भी बंदा आ रहा है, उसकी तशहीर हो रही है, ठीक है, उसमें ठीक है, उसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब मैंने कहा पॉजिटिव साइड के साथ नेगेटिव साइड दिखा दी नीचे अपना इजहार राय का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, तो मैं बुरा हो गया? आपकी इस तरह की सोच ने, और आप तर्जुमा नहीं कर रहे हैं, ये आपका अपना ख्याल है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन है ना, इसी वजह से है ना ये माशरा में बड़ा बिगाड़ पैदा होता जा रहा है। आपको जिससे प्रॉब्लम है उसको जाके बोलो ना, या दुनिया को क्यों बता रहे हो? व्यू लोगर्स इतने आजकल आप देख रहे हैं कि कई जगह पर मार्केटिंग कर रहे हैं खानों की बात, ये बहुत अच्छा खाना है, मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे आप मतलब उसको क्यों, ऐसे लोगों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आजादी राय में बुरे को अच्छा, अच्छे को बुरा कर दें, ये आजादी राय है? ये ना मेरा हक है क्या अपनी सोच का इजहार करना। अच्छा, ठीक है, जो मैं सोचता हूँ उसका इजहार करना। अब ये सामने वाले पे मिनिस्टर करता है कि वो मेरी बात को कितना समझता है। अब वो उसको इल्जाम समझे या बेअदबी समझे। प्रिंट मीडिया ले लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लें, या सोशल मीडिया ले लें, आजकल तो हर कोई ये समझता है अपना हक इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी के बारे में भी बोल सकता हूँ, किसी वक्त भी बोल सकता हूँ। प्लीज शेख, ये एक सेंसिटिव इशू है, लेकिन अब आप ही बताइए कि कौन सही कौन गलत। जी हुजूर, ये वाकई सेंसिटिव इशू है जो इन्होंने कह दिया, और ये सेंसिटिव इशू इस हवाले से भी है कि दुनिया भर में एक लफ्ज़, दुनिया भर में एक वर्ड इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इंटरनेशनल एक वर्ड है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि मुझे बोलने की आज़ादी है, अपने राय की आज़ादी हासिल है। तो ये मीडिया पॉलिसी भी है कि बोलने की आज़ादी हर एक को है, आप आज़ादी पर कदगन नहीं लगा सकते, लेकिन ज़ाहिर है कि हर चीज़ की एक शरई हुदूद व क़यूदात होंगी। इस हवाले से बिल्कुल रहनुमा फरमाइए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप किस तरह देखते हैं? एक मुसलमान जो है ना, मुसलमान आज़ाद इस मामले में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो आज़ादी से अपनी बात के, जैसे बाद लोग ये सुनाई देते हैं कहते हुए कि भाई अपने तो हक बात करते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं, दो टोक बात करते हैं, ऐसे लोग न जाने कितनों के दिल तोड़ते रहते हैं, दिल आज़ारियाँ करते रहते हैं, और गुनाहों का गट्ठड़ अपने सर पर लादे रहते हैं। तो इसलिए मतलब आज़ादी राय का इजहार
یہ नारा ही गलत है. मैं अपनी ये लड़ाइयाँ करते तो मैं बगैर लड़ाई के बता रहा हूँ, मुझे भी तो ये कहने का हक है. तो ये आज़ादी राय का हक ये है, इसमें चारों तरफ पाबंदियाँ. मुसलमान है ना, जैसे कि मुसलमान बोले तो पैरे तोले कि मेरी शरीयत ने इसको इजाज़त दिया, अल्लाह और रसूल ने मुझे बोलने की इजाज़त दी है कि नहीं, इससे किसी की दिल आज़ारी तो नहीं होगी, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, कोई मतलब गुनाह की सूरत तो नहीं बनेगी. प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी बात किसी के सामने नहीं करते थे जिससे उसको बुरा लगे. ये हदीस से पाक है. बाकी जब बुरा लगेगा तो ये तो फिर बुराई में फिर कसर क्या रहेगी. तो आज़ादी का मतलब ये कि किसी का ऐब उछाल दो, किसी की पोलें खोल दो, किसी को डिग्रेड कर दो, तो ये तो माशरा इसी वजह से तो तबाह हो रहा है. तो इसलिए पहले तोलो बाद में बोलो. और ये कि हम मुसलमान हैं, अपने इस्लामी हिसाब से सोचें तो कुरान करीम में इरशाद होता है सूरह हामीम कहफ काफ, सूरह काफ, ये सूरह काफ की आयत नंबर 18. मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद. आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान. वो जबान से कोई बात नहीं निकालता मगर ये कि एक मुहाफिज फरिश्ता उसके पास तैयार बैठा होता है. तो इसकी तफसीर में तफसीर सिरातुल जिनान में मा यल्फिज़ु मिन कौल, यानी जो बात वो जबान से निकालता है, यानी बंदा जो बात जबान से निकालता है उसे लिखने के लिए एक मुहाफिज फरिश्ता उसके पास तैयार होता है, खा वो बंदा कहीं भी हो. तो अब ये देखना होगा कि हम फरिश्तों को लिखवा क्या रहे हैं. अल्लाह पाक भूलने से पाक है. ये हमको मतलब तंबीहात हैं, हमारे नोटिस हैं, खबरदार. वरना अल्लाह पाक को सब मालूम है. जो मतलब ज़ाहिर है कोई कहे कि अल्लाह भूलता है तो मुसलमान भी नहीं रहेगा. ये कुफ्र है. अगर कोई बोल देगा अल्लाह भूल जाता है, नऊज़ुबिल्लाह, या अल्लाह भूल गया, तो इसको तो मतलब उलमा ने कुफ्र लिखा था. अल्लाह पर ऐब लगाना हुआ. ये अल्लाह हर ऐब से पाक है. तो यूं मतलब ये कि मुसलमान जो है ना ये पाबंद है, ये डर है कि जो बोलूँगा लिखा जाएगा. इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये मैंने आयत पढ़ी ना, ये अपनी इह्या उलूम में, कीमिया शहादत में और शायद मिनहाजुल आबिदीन में भी ये इस तरह लिखा है कि बंदा बोलते वक्त ये गौर करे कि लिखने वाला तैयार है. अब बंदा फजूल बोलता है तो फजूल भी वो गुनाह भरी बात पर तो है ही सजा अजाब. फजूल बोलता है जिसका ना सवाब ना गुनाह, न कोई इसका फायदा नहीं है, मतलब ना दीन का ना दुनिया का, ये फजूल बात बोलता है. तो ये भी लिखता रहता है, फरिश्ते लिखते हैं. अब ये सारी बातें क़यामत के दिन बंदे को ये पढ़ के, ये आमाल नामे में जो लिखी हुई फजूल बातें पढ़ के सुनानी होंगी. अच्छा, अब फरमाते भूख से कमर टूट रही होगी, गर्मी से प्यास से जबान बाहर निकल रही होगी, सूख रही होगी. ऐसे में ये बंदा पढ़कर सुनाना उसके लिए कितना दुश्वार तरीन अम्र होगा, और ये सुनाना पड़ेगा इसको. अब इसकी मतलब अगर हम काउंटिंग करें ना, फजूल बात तो रोज़ाना कितनी की, या तो अब ये कि समझो कि रोज़ाना अगर किसी ने 1 मिनट भी फजूल बातें की, हालांकि हम तो करते रहते फजूल बातें, 1 मिनट की सपोज करो, तो ये दिन भर में रोज की 1 हुई ना,
तो महीने की 30 मिनट हुए, तो साल भर के कितने हुए? 6 घंटे। 60 साल की उम्र में फौत हुआ, तो ये 6 घंटे को 60 में करें तो 606 घंटे, गालिबन 606 या 660 घंटे, गालिबन 660 घंटे बनते हैं। तो अब ये कि 660 घंटे ये पढ़कर कैसे सुनाएगा क़यामत के मैदान में? सूरज 1 मील पर रहकर आग बरसा रहा है, और मतलब तो ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि बंदा इसको सुना सके, लेकिन सुनाना होगा इसको। ये तो 1 मिनट की मैंने मिसाल दी, यहाँ तो मतलब रात दिन बक बक हमारा जारी होता है, फजूल बात नहीं। तो ये कि वही हम जो कुफले मदीना की तरगीब है ना, अल्लाह करे कि ये मिल जाए ना। कुफले मदीना इसको बोलते हैं कि मतलब गुनाह भरी बात तो करनी नहीं है, वो तो है मतलब मना गुनाह है। फजूल बात जिसकी हाजत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात करना, तो इस पर अजाब यूं नहीं है, गुनाह नहीं है ये, लेकिन ये कि सुनानी पड़ेगी क़यामत के दिन। तो यूं ये खतरनाक है फजूल बात भी। तो ये रोज का अगर आधा घंटा को बोलता है तो पता नहीं हजारों घंटे लाखों घंटे बन जाएंगे, इतना बोलते हैं फजूल कि खुदा की पनाह। अल्लाह पाक हमको तौफीक दे, अक्ल सलीम दे कि हम काम की बात करें, फजूल बात से जितना हो सके अपने को बचाने की कोशिश करें। हम कोशिश भी तो नहीं करते ना, ये पता ही नहीं था, आज पता चला, चलो आज से शुरू। अल्लाह तौफीक दे हमें कि हम एहतियात करें, और काश माह रमज़ान को माह नेक अमाल के साथ साथ माह कुफले मदीना भी बना दें। ये कुफले मदीना हमारी इस्तिलाह है, लेकिन मदीने का ताला लफ्जी माना है, अपने होठों को मदीने का ताला लगा दें कि ये ताला ऑटोमेटिक है, अच्छी बात करेंगे तो खुल जाएगा। जहाँ फालतू बात आई या माज़अल्लाह गुनाहवरी बात आई तो ये ताला नहीं खुलेगा। ऐसा हमारा मिजाज बन जाए, ऐसा अंदाज हो जाए कि हम फजूल बातें ना करें। किसी का ऐब बयान करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को झाड़ना, हमारा तो ये धंधा है, रात दिन का मामूल है। अल्लाह पाक अपनी रहमत की नज़र फरमाए। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम की खिदमत बाअज़मत में लोगों ने अर्ज़ किया, कोई ऐसा अमल बताइए कि जिससे जन्नत मिले। इरशाद फरमाया, कभी बोलो मत। अल्लाह अकबर। अर्ज की गई, ये तो नहीं हो सकता। फरमाया, अच्छी बात के सिवा जबान से कुछ मत निकालो। हवाला इह्याउल उलूम जिल्द 3 सफ़ा 136। अक्सर मेरे होंठों पे रहे जिक्र मदीना। काश। हजरत सैयदना सुफियान बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक बार मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और नुकसानदेह चीज़ किसे करार देते हैं? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक पकड़कर इरशाद फरमाया, इससे ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। हवाला सुनन तिरमिज़ी जिल्द 4। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बरोज़ क़यामत बंदे को फजूल बातों पर मलामत की जाएगी और उसको शर्मिंदा किया जाएगा। बंदे के पास इसका कोई जवाब ना होगा और वो अल्लाह पाक के सामने शर्म और नदामत से पानी पानी हो जाएगा। हवाला मिनहाजुल आबिदीन, पेज नंबर 67। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये अर्ज़ है, जैसा ये अभी गुफ्तगू हुई इस हवाले से कि अपना हक बयान करने के हवाले से, तो मोमिन कौन होता है? यानी जैसे अब मिसाल के तौर पर मैं अपना आज़ादी हक के आज़ादी ये समझ रहा हूँ कि किसी की कोई मैंने चीज़ देखी तो अब अगरचे उसको बुरा लग रहा है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा, इसके बावजूद मैं उसके ऊपर जिस तरह के चाहे कमेंट्स पास कर दूँ,
اور اس کو اپنا آزادی کا حق قرار دوں. مومن جو اسلام کا ہے، اسلام یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامل مومن کی تعریف کی ہے، اگر اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرما دیں. حدیث پاک میں تو یہ بیان فرمایا گیا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 13. یہاں مومن سے مطلب کامل مومن، کمپلیٹ مومن. تو ہمیں مطلب یہ کہ تو دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تب یہ بات ہو، چیز ہو، غذا ہو، کھانا ہو، افطار ہو، سحری ہو، ہے نا، بہت کچھ اس میں. یہ بہت جامع روایت ہے. لیکن اب ہم جو پسند کرتے ہیں دوسرے کو دیتے نہیں ہیں، دوسرے کو گھٹیا دیتے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. ہماری تو یہ کیفیات ہیں. تو اللہ پاک بس کرم فرمائے. اور یہ آزادی رائے کا جو حق بولتے ہیں نا، یہ بولتے ہیں کہ گمراہ کن جملہ ہی ہے. اس میں آدمی بہک جائے گا اور یہ دل آزاری اور سب اس کے لیے سمجھے گا یہ آزادی ہے، سمجھے، کسی کے باپ کی طاقت نہیں، ہم کو کوئی روک نہیں سکتا وغیرہ. مسلمان بندہ پابند ہے. بندہ کا معنی ہی پابند. ہم اللہ اور رسول کے حکم کے پابند ہیں، ہم مکلف ہیں، ہم اپنے مرضی کے مالک نہیں ہیں. سب چلتا ہے نہیں، صرف اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے کہ بعض اوقات اس میں کفریات بھی بک دیتے ہوں گے. دنیا کے کسی مقام پر بھی سب کچھ نہیں چلتا. ہر جگہ پر ہر ادارے کے قواعد قانون ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں. جب تک اس کی پابندی نہیں کی جائے گی اس وقت تک کچھ بھی نہیں چلتا. جی جی. سورہ طلاق میں ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تو اس کی شرح میں تفسیر یعنی تمہیں جو احکام دیے گئے یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں جن کے اندر رہنا بندوں پر لازم ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا. تفسیر صراط الجنان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آنے والی پیر شریف یوم کفل مدینہ بھی ہے. سبحان اللہ. ہاں یہ اپنے پہلی تاریخ جو ہوتی ہے نا انگلش حساب سے، تو اس میں یعنی عیسوی سن کے حساب سے پہلی تاریخ کو یوم کفل مدینہ ہماری مجلس ہے نیک اعمال والی، ان کی طرف سے سمجھو یہ منایا جاتا ہے. تو پیر شریف کو یوم کفل مدینہ. اب کیا کرنا ہے وہ تو عرض کر ہی دیا میں نے کچھ نہ کچھ. تو لکھ کر ہو سکے جہاں تک تو بات کر کے کام چلتا ہو، یہ آپس میں ہو سکتا ہے، عوام میں نہیں ہو سکے گا. لکھ کر بات کریں، یا مطلب یہ کہ جہاں اشارے سے چلتا ہو، بولے بغیر گزارا ہو جاتا ہو تو اشارے سے بات کر لے. جبکہ یہ اپنے ماحول میں جو سمجھتا ہے اس کو. ماں باپ کے سامنے اشارے کرو گے تو وہ ناراض ہو سکتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا ہے کہ ماں باپ کو ناراض ہو، یا کسی عام آدمی کو جس کو سمجھ نہ آتی ہو ہمارے اشارے تو اس کو تشویش میں ڈالنا، پھر اس کو غصہ آ جائے. اور یہ پھر تو یہ جہاں جہاں ممکن ہو تو وہ اشارے سے یا لکھ کر بات کی جائے. تو یہ اس طرح یوم کفل مدینہ میں. دوسرا ہے کہ خاموش شہزادہ ایک رسالہ ہے، جھوٹ کے فضول باتوں سے بچنے کے لیے بڑا مطلب ہے کہ اس میں بہترین روایتیں اور سب لکھی بھی ہیں، بزرگوں کے اقوال وغیرہ. تو یہ پڑھنا بھی ہوتا ہے تاکہ ریمائنڈ ہوتا رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے پڑھنے یا سننے. ادھر اپنے اب معتکفین میں تو پڑھ کے سنانے کی ترکیب کر لی جائے ممکنہ صورت میں. پڑھنے میں سستی ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ سن تو لیں گے، چاہیں تو قسطوں میں سنا دیا جائے یوم کفل مدینہ پیر شریف کو. انشاءاللہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
अमील सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में ये तमाम इस्लामी भाई आपके ज़रिए सिलसिला कादरिया में बैत करने की नीयत की है, आप इन सब इस्लामी भाई को कबूल फरमाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी युगांडा में अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह के इतिकाफ में ये इस्लामी भाई बैठे हुए हैं, इनको कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मैंने इनको सिलसिला आलिया कादिरिया रज़विया में कबूल किया। ये उर्दू तो समझेंगे नहीं, आप ट्रांसलेट करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौफ़ पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का ए अल्लाह पाक मुझे जनाब गौस आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आजो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमाल का दारोमदार नियतों पर है। टीच डिपेंड ऑन इंटेंशन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह। जरीर रज़ा ने हदीस से बात सुनाई, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमाल का दारोमदार नियतों पर है। और उर्दू में भी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करके सुनाया आपको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है, अगर अम्मी कहीं के सहरी के लिए हलवा अम्मी कहे कि सहरी के लिए हलवा पूरी लेकर आना, और हमें पता है कि अम्मी की उम्र और सेहत के लिहाज से अम्मी को हलवा पूरी नहीं खिला सकते, अब इसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? अम्मी की भलाई करनी चाहिए। हमने तो ऐसे बाज़ों का एक मरीज़ देखा था, वो बेचारे उनको पानी भी हजम नहीं होता था। एक मुबालगा कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ में थे वो, वफात पा चुके हैं, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। और बिरयानी खिलाओ, पाए खिलाओ। और इनको बिरयानी पाए खिलाना वही बेटा खिलाएगा जिसको यूँ हो कि जल्दी चले जाए अब्बू। तो ऐसे मौके पर सारे माँ बाप जब इनको होश नहीं है और इस तरह की बातें करते हैं, तो प्यार मोहब्बत से फुसला कर तरकीब बनाए। बाकी हलवा पूरी ये बहुत हेवी ग़िज़ा है। मैं होशो हवास में हूँ, है ना, अपनी उम्र के मतलब मैं भी हजम नहीं कर सकता इसको। ये खीर पूरी की और आप लोग जो नियाज़ें खाते हैं मुझसे एक आध छोटा सा पीस खा लिया वो अलग बात है, लेकिन ये कि मैं इस पूरी क्या इसकी मतलब आधे भी नहीं खा सकता। मुझे पता है ना, तजर्बा है कि मेरा मैदा वो लक्कड़ हजम पत्थर हजम ना रहा। तो ये सबको समझना चाहिए कि इसी बात में जिद करके अपने आप को मुसीबत में डालना है। यहाँ तक टेस्ट है, हल्क की जड़ तक, इससे नीचे उतरा तो टेस्ट बाकी रहता नहीं। जो भी गया अंदर ये तूफान मचाएगा।
اگر کوئی ایسا گیا آڑا ٹیڑھا تو. فیس بک لائیو چیٹ کے ذریعے سوال ہے، اسلامی بہن کا سوال لگ رہا ہے کہ نماز کے درمیان جیسے 4 رکعت سنت پڑھ لی، اب 4 فرض پڑھنے ہیں، ابھی نیت کی نہیں ہے کہ گھر میں سے کسی نے کچھ کام کا کہہ دیا کہ یہ لا دو، یہ اٹھا دو، یہ پکڑا دو، تو کیا نماز ہو جائے گی نا اس طرح نماز کے درمیان کام کرنے سے؟ نماز کے درمیان سنتیں پڑھی ہیں اور اب فرض کی نیت باندھنے لگے تو کسی نے کہا کہ یہ کام کر دو، اب کام کر کے پھر فرض پڑھے تو پوچھ رہے ہیں کہ اس صورت میں نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ اچھا اب نیت باندھے ہی نہیں ہے، ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی جبکہ وقت قضا نہ ہوا، وقت نہ گیا ہو. اس فیس بک پر یہ محمد عاقب سوال کر رہے ہیں، کیا بچی کا نام جنت رکھ سکتے ہیں؟ رکھتے تمہیں جنت رکھتے، ارم نام رکھتے، ارم بھی جنت، فردوس رکھتے ہیں، یہ بھی جنت کا سب سے اعلیٰ اعلیٰ جنت سب سے فردوس. ایس ایم ایس کے ذریعے محمد اویس ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کی طرف سے صدقہ فطر کوئی اور کیا ادا کر سکتا ہے، کیا ادا ہو جائے گا؟ جبکہ جس کی طرف ادا کیا اس کو پتہ ہو، اجازت دے کہ ہاں ٹھیک ہے کر دو تو ہو جائے گا. بعض انڈرسٹوڈ ہو کہ باپ سب بالغ اولاد کا فطرہ دے رہا ہے تو ان کا ہو جائے گا، نابالغ سے تو اطلاع کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس باپ پر فطرہ واجب ہے اس پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہے، بالغ اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے، یہ خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرے فضل و کرم سے ماہ رمضان کی رحمت بھری فضائیں ہیں، شب جمعہ ہے، قبولیت کی شب ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. مولا کریم ساری امت کی مغفرت کر دے. اے اللہ پاک میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے، میرے طالب ہوئے، الہ العالمین سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما. رحمت کے عشرے کے صدقے میں ان کو رحمتوں سے نواز دے. اپنی رحمت سے ان کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد دور فرما. سب کو سکھی کر دے. اے اللہ پاک روزی روزگار کی برکتیں نصیب فرما. بے اولادیاں دور کر دے. جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے. یا اللہ پاک عالم اسلام پر رحم و کرم فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج شب جمعہ ہے، جمعرات کی شب ہے، جیسے یوں جمعے کی شب ہے. آج دوبارہ لے کے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات یہ درود شریف ہمارے یہاں پڑھے جاتے ہیں تو پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی شب یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े अगर खड़ा था तो बैठने से पहले, और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। हज़रत अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह बाज़ बुजुर्गों से नक़ल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नातें सुनेंगे इंशाअल्लाह। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं। आज जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, जो जानबूझकर एक नमाज तर्क कर दे उसका नाम जहन्नम के किस दरवाजे पर लिख दिया जाता है। सवाल नंबर 2, बग़ैर ताज्जुब के हंसने से क्या नुकसान होता है। सवाल नंबर 3, हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक औरत को दिल की नरमी का क्या नुस्खा इरशाद फरमाया। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2026 को मदरी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, फजर की अजान में कलिमा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सबसे पहले किस सहाबी की जबान से अदा हुआ। जवाब, हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु की जबान से। सवाल नंबर 2, किस सदक़े की बरकत से रोजे की कोताहियां मुआफ हो जाती हैं। जवाब, सदक़ा फितर की बरकत से। सवाल नंबर 3, अहले मदीना कौन से 2 सदक़ों को अफजल तरीन सदक़े मानते थे। जवाब, सदक़ा फितर और पानी पिलाना। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सेलेक्टेड नाम: बिनते मोहम्मद जाफर अत्तारिया समनाबाद, मोहम्मद आमिर मुश्ताक अत्तारी
اتاری جھنگ، احمد حسن میاں والی بنت جمیل احمد قادری قصور، بنت آصف اتاریہ لاہور، عبد الوارث اتاری گجرانوالہ، بنت قطب الدین خان بیلا۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام عبد الوارث اتاری گجرانوالہ، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضا